Welcome, Ji. Let's start. Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir, and I am the Director Operations at Parsa Eco Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to yet another Eco session on series of Hepatitis Eco, supported by unrestricted educational grant by Ferosens Laboratories Limited, and it's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Today's session is case-based discussions with experts, and our expert for tonight is Professor Altaf Alam. Before I introduce to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA, and it's with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself for questions and use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared by Haris in chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. CME credits are affiliated with Jinnah Sindh Medical University. For the convenience of the folks, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. Our expert today is Professor Altaf Alam. He is a former professor and head of gastroenterology hepatology department at Sheikh Zayed Postgraduate Medical Institute, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Medical and Dental College, Lahore, Pakistan. He is trained gastroenterologist with more than 20 years of experience in his specialty and is an author of more than 50 publications. He is serving as course director at Parsa Eco Pakistan since the beginning. He is responsible for developing curriculum, observing quality of content, evaluating speakers, and feedback evaluation. We have three cases today. Dr. Oj will be presenting the two cases, and we have a case by the spoke, Dr. Hina, with I think she will be presenting the third case. So I will now hand over to Dr. Oj for case presentation. Dr. Oj. Ji, Assalamu alaikum. Uzair bhai, can you please share the cases? Okay, I'm going to start the first case now. The first case is a 60-year-old male, known case of diabetes and hypertension, recently diagnosed as HCV positive, presented in OPD with complaint of severe weakness. In June 2021, he had a history of ascites and therapeutic TAP was done. Ultrasound of June 2021 showed features of chronic liver disease with portal hypertension, severe ascites, and mild splenomegaly. Currently, the patient was on spironolactone 100 mg 3 tablets OD and furosemide 40 mg 2 tablets OD, glimepiride 1 mg BD, and low salt diet. In September 2021, another ultrasound was done which showed features of CLD, splenomegaly, and ascitic traces were also seen. Can you change the slide, Uzair bhai? Next slide, please. Wait, it's not working. उज़ैर इनको दोबारा शेयर करें. जी उज़ैर भाई मूव नहीं कर रही स्लाइड. You can copy paste in chat agar. Can you see the slide now? Yes. जी इसी तरह रहने दें जी. नेक्स्ट पर आ जाएं. Okay.
Okay, as you can see, the lab investigations from June to August, CBC was normal, but in August, HB dropped to 9.5. Creatinine was also fluctuating, but in August it was much better than the previous one, 1.42, and creatinine clearance was 55 mils per minute. LFTs were more or less same. ALT/AST was slightly raised. PTINR was 11.26 by 0.94. AFP was also 3.3, anti-HCV positive, HBs antigen negative. PCR qualitative was detected and CTP was calculated to be B7. Next slide, Mr. Akbar. The questions regarding this case are: what should be our next step? Patient is asking for liver transplant. And does this patient need further investigations? And what is the preferred antiviral treatment regime here? Thank you. Okay, I'm very glad to have Dr. Nadeem Tehami. Dr. Nadeem, welcome, and Dr. Ali Haider, who are going to help me out with these cases. So welcome both of you, and I welcome all the participants for this case-based discussion. So here we have a patient who is a decompensated cirrhotic, as you can very well see, age 60, also having diabetes and hypertension. And at one stage, as you can see, the creatinine was high, and he had one episode of acetic tap as well. The creatinine went up to 3.2, if I can read it correctly, 3.29. So this is, and this patient is also on very high dose of diuretics, spironolactone 300 and furosemide 80 milligram a day. So whatever the numbers show, child class B7 as mentioned, the MELD score should also be calculated in such patients, which comes to around 14, which I have just done now. So MELD score is 14. So what do we do? Patient पूछता है कि liver transplant करा लूं या वायरस खत्म करने की दवाई लूं. ये बड़ा tricky question है इस particular patient में. Of course, MELD 14, history of ascites so severe that requiring TAP once, creatinine going up during the course of illness, very high dose of diuretics, CTP is B7, MELD is 14. The first thing is to sit down with the patient and talk to this particular patient about the nature of the disease. उसको हमने क्या बताना है? हम ये कहेंगे कि हेपेटाइटिस सी की वजह से जिगर की शक्ल और काम दोनों खराब हो चुके हैं, पेट में पानी है, अभी तक कोई खून की उल्टी या गनूदगी बेहोशी नहीं हुई, पेट का पानी एक दफा निकालना पड़ा था क्योंकि वो प्रॉबेबली दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा था, और आपको पेशाब आवर गोलियां बहुत हाई डोज में दी जा रही हैं असाइटिस को कंट्रोल करने के लिए. जब मेल्ड स्कोर 14 पे पहुंच जाए और ये सिचुएशन हो, तो सबसे पहले तो लिवर ट्रांसप्लांट की बात पेशेंट से करनी चाहिए. मैं कहूँगा कि जिगर की शक्ल और काम इतना खराब हो तो बेस्ट सोल्यूशन तो ये है कि आप ट्रांसप्लांट कराएं, और मैं आपका ट्रांसप्लांट टीम से राब्ता कराता हूँ, उनसे मिलें और मेरे पास दोबारा आएं, ताकि मैं आपको, अगर वो ट्रांसप्लांट इमीडिएटली नहीं करना चाहते तो मैं आगे चलूं और वायरस को ख़त्म करने की कोशिश ट्रांसप्लांट से पहले करूं. लेकिन अगर वो ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहली चीज़ लिवर ट्रांसप्लांट होनी चाहिए. ये पेशेंट मैनेज कहाँ होना चाहिए? ये पेशेंट ऐसी जगह पर मैनेज होना चाहिए जहां पर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस,
जैसे अपर जीआई ब्लीड जो किसी वक्त भी हो सकती है, वो मैनेज हो सके, और हेपेटोरीनल सिंड्रोम अगर इस पेशेंट को हो जाए तो वो मैनेज हो सके। सो ये पेशेंट आइडियली टर्शरी केयर सेंटर में मैनेज होना चाहिए, प्राइमरी केयर में मैनेज ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम देखते हैं कि जब ऐसे पेशेंट को अगर ट्रांसप्लांट नहीं भी हुआ, हमने दवाई शुरू की है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस ब्लीडिंग हो सकती है, हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो सकता है, और स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकती है, और रिफ्रैक्टरी एसाइटिस हो सकती है। सो उसको मैनेज करने के लिए इट शुड बी इन अ टर्शरी केयर सेंटर जहां इनको हैंडल करने की फैसिलिटीज मौजूद हो, और ऑफ कोर्स अप फ्रंट लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट को मेंशन करना चाहिए। पेशेंट को और क्या बताना है? हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, CRNA पॉजिटिव है, बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव है। अगर उसने बी का हिफाजती टीका नहीं लगाया तो ये टाइम है कि उसको बी का हिफाजती टीका लगाया जाए। उसको बताना है कि जाती इस्तेमाल की वो तमाम चीजें जिस पर खून लग जाता है उसको अलग रखें, मसलन तौलिया, टूथब्रश, रेजर, कंघी, नेल कटर, हेयर ब्रश। खून निकले उसको कोई आदमी हाथ ना लगाए, जख्म हो उसको कवर करके रखें। लेकिन साथ रहने, साथ खाने, साथ सोने, साथ पीने से कुछ नहीं होता, ना कपड़े अलग, ना बर्तन अलग, ना बिस्तर अलग। मियाँ बीवी के ताल्लुकात से ये वायरस एक दूसरे को लगने का चांस इतना कम है कि हम नॉर्मल ताल्लुकात की इजाजत देते हैं। ये तो जनरल काउंसलिंग हो गई। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के अलावा कोविड की वैक्सीन है, वो लगवानी चाहिए या नहीं? द आंसर इज सर्टेनली बिग यस विद कैपिटल वाई। सो इसको कोविड की वैक्सीन जरूर लगी होनी चाहिए, बिकॉज इफ ही गेट्स कोविड ही इज नॉट गोइंग टू डू वेरी वेल। फ्लू की वैक्सीन यस, नमोनिया की वैक्सीन यस, हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन थ्योरेटिकली यस। हेपेटाइटिस ए हमारे सेटअप में सारे इम्यून है, लेकिन अगर आप ए का IgG चेक करें और वो नेगेटिव हो तो आप उसकी भी वैक्सीन कर सकते हैं, अवेलेबल है। हेपेटाइटिस ई की भी वैक्सीन कर सकते हैं, अब अवेलेबल है चाइनीज वैक्सीन, जो कि अभी FDA अप्रूव्ड नहीं है लेकिन पाकिस्तान में अप्रूव्ड है और अवेलेबल है। डाइट क्या लेनी है? आपने इसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस जरूर असेस करनी है, और उसके मुताबिक, क्योंकि इसको कोई ऐसे फीचर्स नहीं है, शुगर का इलाज और परहेज जारी रखे। बाकी गोश्त, अंडा, मछली, दालें, रोटी, चावल, फल, सब्जियां, दूध, दही, मक्खन, घी, तेल, सब चीजें ले सकते हैं। नमक रिस्ट्रिक्ट करें, लेकिन रीजनेबल अमाउंट में। जो गाइडलाइंस कहती हैं वो थोड़ी सी डिफर करती हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन ना करें ताकि पेशेंट की एपिटाइट ही ना खत्म हो जाए। और समथिंग लाइक 2 ग्राम ऑफ सोडियम यानी 5 ग्राम ऑफ टेबल सॉल्ट, या 1 टीस्पून भरा हुआ हीप्ड टीस्पूनफुल रोजाना ले सकते हैं। सो ये चीजें जनरल पहले पेशेंट से बात करनी है और उसका रिस्पांस देखना है। वो कहता है जी मैं ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं, मेरे पास डोनर भी है, तो फिर तो आपको ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए। ऑल्दो गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि CPT स्कोर 10 to 12 हो या मेल्ट स्कोर 18 to 20 हो, उस वक्त इलाज नहीं करना चाहिए, ट्रांसप्लांट पहले। लेकिन इस पेशेंट की थोड़ी सी चीजें ठीक नहीं है, सो मैं प्रेफर करूंगा ट्रांसप्लांट एंड देन ट्रीटमेंट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ट्रांसप्लांट सेंटर इसे नहीं ले सकता या नहीं लेना चाहता किसी वजह से, या इनके पास डोनर नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, तो आई विल मेक एन अटेम्प्ट टू ट्रीट दिस पेशेंट। जहां तक आपने पूछा है कि इन्वेस्टिगेशंस कोई और होनी चाहिए, द आंसर इज probably just endoscopy। बाकी मेरे पास सारा डेटा मौजूद है। एंडोस्कोपी जरूर होनी चाहिए बेसलाइन, और अगर हाई ग्रेड वेरिसीज हो तो उनको बैंड लाइगेट करना चाहिए। सो ये तो यहाँ तक की बात हो गई। और तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि इसमें अगर इलाज करना है तो प्रेफर्ड ट्रीटमेंट क्या होगी? वेल, प्रेफर्ड ट्रीटमेंट तो सॉफ्ट डेक्लाराइबा फॉर 6 months अगर ये पेशेंट सरकारी इदारे से इलाज ले रहा है, और अगर ये अपने जेब से ले रहा है तो सॉफ्ट वेल
राइबा भी आप दे सकते हैं। रिमेंबर कि इसकी हीमोग्लोबिन यहाँ पर कम है, सो एंडोस्कोपी पहले, build up hemoglobin before we start ribavirin. So maybe iron, TIBC, B12, folic acid, endoscopy and band ligation, build up the hemoglobin and then start this treatment. अभी EGFR 55 है, इसलिए राइबाविरिन की डोज रिस्ट्रिक्शन नहीं है और बाकी मेडिसिन्स के भी कोई ग्रोस कंट्राइंडिकेशन नहीं है. सो आइदर सॉफ्ट एक्लाराइबा फॉर 6 months और Sof-Well Riba for 6 months. So ये in a nutshell इस patient की management है, counseling, vaccinations, diet, कुछ investigation like endoscopy और transplant की जिक्र और उसके लिए कोशिश and followed by अगर transplant में time है या नहीं हो सकता तो maybe antiviral therapy, जो कि इन दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं. जी, ये इस केस के बारे में मेरी है. अगर अली हैदर साहब या नदीम तेहामी साहब कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज, आई वुड वेलकम देयर ओपिनियन. नदीम तेहामी, प्लीज, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? सर, अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी, आई कैन हियर यू. जी, गो अहेड. नहीं सर, आई थिंक आपने जो है इसको बड़ा तसल्ली बख्श और जवाब दिया, हर चीज को एक्सटेंसिवली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया. मुझे तो मुकम्मल इत्तेफाक है आपकी एडवाइस से. थोड़ा सा एक सवाल ये था कि जो इसके किडनी फंक्शन टेस्ट हैं, वो अगर उनका ट्रेंड, I'm sorry मैंने पूरा देखा नहीं कि उनकी जो अगर if जो ट्रेंड डिटोरिएट कर रहे हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, तो जो डायूरेटिक्स हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं. बल्कि I mean I personally consider to stop if there is any obvious indication that there is a general decline in the kidney function tests. Because if it is related to underlying liver disease, then I think if our focus is on optimizing liver function, then hopefully it should improve. However, worse, if we continue to treat them and continue with the diuretics and things gets worse, then it sometimes can negatively impact on the decision that transplant team makes. So that is एक छोटा सा उसमें एक question mark था. I'm not entirely disagreeing के जो आपने advice दी है. Thank you very much. Very valid point. इस वक्त ascites बहुत minimal है और diuretics का इतना load देना probably inappropriate है. So always be ready to reconsider the dose of diuretics. अली हैदर साहब, आपका कोई कमेंट प्लीज? जी, वालेकुम अस्सलाम सर. सर, आपके कहने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है उसमें ऐड करने की. आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. जो डॉक्टर नदीम ने भी ये अल्फाज कहे, उनके साथ में एग्री हूँ. जस्ट यहाँ पे जैसे आपने जिक्र किया Sof-Velpa 6 month, Sof-Velpa प्लस रिबाविरिन 6 month, तो ये भी हम 6 month दे या 3 months दे दे इन पेशेंट्स को जहां हम रिबाविरिन ऐड करते हैं वेल्पा के साथ. तो ये 3 month आई थिंक के वो उनके लिए सफिशिएंट है जहां हम रिबाविरिन ऐड करें सिरोटिक होने की वजह से. और दूसरी बात, इन पेशेंट्स में नो डाउट डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस लिवर विथ रीनल इम्पेयरमेंट नोटेड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डिजीज. तो इनमें अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस के हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स कंटिन्यू करें या पेशेंट्स को जो है इंसुलिन पे शिफ्ट करें, इनके बारे में आप पॉइंट ऑफ व्यू दे दे तो रहनुमाई होगी सर. वेरी गुड. यस, किसी भी
organ failure में oral hypoglycemics don't do very well. So insulin is the best treatment, including liver. लेकिन हमारे patients बहुत reluctant होते हैं, so you need to sit down and counsel these patients. So very good point. Yes, diabetes का good control and organ failure में insulin is a better drug than oral hypoglycemics. एक question पूछा गया है, हाँ sorry, Sof-Well Riba for 3 months, Sof-Decla-Riba for 6 months. लेकिन अगर आप Sof-Well के साथ राइबा नहीं दे रहे तो decompensated cirrhosis में I prefer to use it for 6 months without ribavirin. So these are the options. So एक क्वेश्चन चैट में पूछा गया है कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कब रेफर करना है, मेल्ड स्कोर 14, 15 या 18. इस पेशेंट का स्कोर 14 बनता है, मैंने कैलकुलेट किया है. सो 14 इज द स्कोर जहां पर लिवर ट्रांसप्लांट टीम को ऑन बोर्ड ले लेना चाहिए. ये नहीं कि वो पेट खोल के ट्रांसप्लांट अगले दिन कर देंगे, लेकिन ये वो लेवल है जहां पर रैपिड डिटेरियोरेशन और फर्दर प्रोग्रेशन एक्सपेक्टेड होती है, और इसमें वन शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लिवर ट्रांसप्लांट. सो 14 इज द लेवल जो कि इसका अचीव हो चुका है. जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ और वरिंग फीचर्स हैं, हिस्ट्री ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट, हिस्ट्री ऑफ एसिटिक टैप. So we are already bordering on refractory ascites versus hepatorenal syndrome. So this is a situation where one should think about liver transplant. Liver transplant के लिए कहाँ भेजना है? Of course, depending on the affordability of the patient, public sector versus private sector. KPK में patient है तो आपके नियरेस्ट तो पब्लिक सेक्टर नहीं है, प्राइवेट है, शिफा इंटरनेशनल. लेकिन अगर पेशेंट ट्रैवल कर सकता है तो लाहौर में PKLI, कराची में डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और गंबट में गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. ये पेशेंट्स जनरली मेरे लाहौर से गंबट ट्रैवल कर लेते हैं, और अगर उनको ये पता हो कि वहां पर फ्री ट्रांसप्लांट हो जाता है. सो रेफर कब करना है और कहाँ करना है, ये वी हैव ट्राइड टू आंसर दिस क्वेश्चन. जी, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस केस अदर देन व्हाट वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड फ्रॉम द चैट? आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और रेज हैंड ऑप्शन यूज कर लें. सर इसमें सर अगर हम एक जो आप लोगों की हमें लर्निंग थी, टीचिंग थी, जो टीचिंग थी आप लोगों की हमारे लिए, कि जब भी सिरोसिस लिवर हो और एक भी उसमें कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो चुकी हो, लाइक ascites हो, अपर GI ब्लीड हो, इंसेफेलोपैथी हो, तो एट लीस्ट पेशेंट्स को काउंसिल कर लेना चाहिए फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन. आइदर वो मेल्ड स्कोर पूरा है, चाइल्ड प्यू स्कोर जो है वो कंप्लीट है या नहीं है, एडवांस लिवर सिरोसिस है या नहीं है, क्योंकि इन पेशेंट्स को डीकम्पेंसेशन एपिसोड्स डेवलप होने में देर नहीं लगती. हमारे पास हाइजीनिक कंडीशंस जो है वो इम्प्रॉपर है, और उसके अलावा मल्टीपल दूसरे इन्फेक्शंस ये पेशेंट्स जो है लो इम्यूनिटी की वजह से एक्वायर कर लेते हैं. सो हैविंग सेड दैट, इन चीज़ों को जहन में रखते हुए जब भी कोई सिरोटिक लिवर डीकम्पेंसेटेड फीचर्स के साथ आ जाए, उनको एटलीस्ट काउंसिल कर लेना चाहिए कि इन पेशेंट्स को नियर फ्यूचर में लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ेगी. तो एटलीस्ट वो फैमिली के जहन में ये बात होगी लिवर ट्रांसप्लांटेशन, तो वो उसके ऊपर वर्कअप कर लेंगे, और वो अगर लिवर ट्रांसप्लांटेशन टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं तो उनकी लिस्ट में भी ये होगा कि जब भी कोई खुदा न खासा एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर डिजीज इन पेशेंट्स में डेवलप हो जाए,
या वो परसिस्टेंट हेपेटिक इनकेफ में या रिपीटेड हेपेटिक इनकेफलोपैथी में चले जाते हैं, या कुछ स्मॉल ट्यूमर 3 मंथ 6 मंथ 4 मंथ के टाइम पीरियड पे एसओएल लिवर डिटेक्ट हो जाता है, तो वो ऑलरेडी कोऑर्डिनेटेड होंगे लिवर ट्रांसप्लांट टीम के साथ और मेंटली वो प्रिपेयर होंगे, तो वो अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकते हैं मीनवाइल 3-6-5 मंथ के अंदर, चाहे वो हमारे पास एट प्रेजेंट मेल्ड स्कोर या चाइल्ड एडवांस लिवर सिरोसिस में पेशेंट ना भी हो, तभी ये चीज उनके जहन में बिठा लेनी चाहिए। इससे भी काफी हमने जो है फायदा देखा है कि वो पेशेंट अर्ली ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाते हैं जब भी कोई अन इवेंट जो है हार्मफुल इवेंट क्रिएट हो जाता है। जी सर। Agreed. Any other question? Anyone? सर इस केस में कार्बेडिलोल के बारे में आप क्या कहेंगे? देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, डोज क्या होगी? Unless patient का blood pressure जो है systolic is staying above 90, I would certainly start with a low dose propranolol maybe. Carvedilol थोड़ा सा problematic हो जाता है when renal impairment sets in. So अगर इसकी varices होंगी तो I would try gradually building up dose of propranolol in this patient. Sure. एक चैट में क्वेश्चन पूछा गया कि इसका सोफॉस्बाविर का डोज क्या होगा। वेल, इस पेशेंट का हमारे पास तो ऑप्शन ही दो हैं, सॉफ्ट डैक राइबा और सॉफ्ट वेल राइबा। सो इवन इसको अगर रीनल इम्पेयरमेंट फुल फ्लेज्ड भी होती, ये हीमोडायलिसिस पर भी होता, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी प्रोटीएज इनहिबिटर डीकंपनसेटेड सिरोसिस में यूज नहीं की जाती। सो हमारे पास यही दो ऑप्शंस हैं और सारी दुनिया के पास भी यही दो ऑप्शन है इन डीकंपनसेटेड सिरोसिस। जी इकराम, आपने हाथ उठाया है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सर मेरा क्वेश्चन है कि हम जिस तरह जो हमारे पास डीकॉम्पनसेटेड लिवर डिजीज के पेशेंट्स हैं उनमें सर अगर हम देखें तो वेस्टर्न हमारे पास जो रिकमेंडेशन है वो है हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीनेशन वो रेकमेंड करते हैं। हमारे यहाँ ये एक आर्गुमेंट होता है कि ए बहुत कॉमन है और यूजुअली पेशेंट्स को ऑलरेडी हो चुका होता है। तो सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि इसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस बेस्ड कोई स्टडी है या मतलब आप अपनी प्रैक्टिस में जैसे देखते हैं हम कि हमारे पास अगर हेपेटाइटिस ए IgG लेवल्स जो हैं एंटी HAV IgG लेवल्स, तो उनकी सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या हम कभी कुछ पेशेंट्स को फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस ई हुआ है रिसेंटली या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो उसमें हम ये करवा के देख सकते हैं बिकॉज वैक्सीनेशन तो अवेलेबल है, तो क्या हम कुछ पेशेंट में ये कंसीडर कर सकते हैं या नहीं? ओके ओके, यस, एविडेंस तो हमारे पास है। मल्टीपल स्टडीज हैव शोन के by the age of early teens 98% are exposed and immune to hepatitis A virus. So evidence हमारे पास है। लेकिन अगर कोई पेशेंट बहुत अच्छे सोशल सेटअप से निकला हुआ है, क्लीन एनवायरनमेंट में रहा हुआ है, तो उसको आप एंटी HAV IgG चेक कर सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो ही इज एक्सपोज्ड एंड इम्यून, अगर वो नेगेटिव है तो यू कैन ऑफर हेपेटाइटिस A वैक्सीन। So this is the answer to the question. Yeah. Dose of sofosbuvir उतना ही रहेगा, 400 मिलीग्राम, डैक्ला का भी और वेल्पा का भी। So dose change नहीं होगा। प्रॉब्लम आपको राइबाविरिन के साथ आएगी क्योंकि इसका हीमोग्लोबिन लो है और हिमोलिसिस, और ये आपको प्रॉब्लम देगी। रीनल इम्पेयरमेंट थोड़ी सी,
अगर ये बढ़ गई तो राइबाविरिन का डोज एडजस्ट करना पड़ेगा आपको बेस्ड ऑन EGFR. सो सॉफ, डेक्ला और वेल्पा ये डोज वही रहेगा जो आप यूज करते हैं. So जी, can we एनी go अदर? towards जी. the second case, Okay. Professor? Sure. जी, Dr. जरूर. Or? Geez. So, can you hear me? Gigi, we can hear you. Please go ahead. So the second case is a 45-year-old female, history of chronic hepatitis B. She has been on tenofovir disoproxil 300 mg once daily since 2017 May. Treatment compliance is good and currently there is no active issue. She is non-diabetic and non-hypertensive. Her ALT has been normal throughout the treatment. On examination, abdomen is soft and non-tender. Family history, she had a younger brother with CA lung. Fibroscan in 2017 showed F2, F3 fibrosis. And in 2020, the only ultrasound available was of 2020, showed coarse liver echo texture, no SOL, no ascites or splenomegaly. Next slide, please. So the lab investigations shows since 2016, HBe antigen was negative, sorry, an anti-HBe positive. Her HBV DNA was more than 20,000 in 16. Previous slide. And in 2017 was also above 20,000. And in this year, TDF was started, and later her PCR is negative throughout. And in October 2021, it's still negative. And in LFTs are more or less normal. HB is 9.7, and platelets are 602. And creatinine is also normal. Next slide. The questions regarding this case are, should we continue TDF, and can we stop antiviral treatment in this patient? And what should be the frequency of follow-up in this case? Thank you. Thank you, Dr. Aj. Another good case. यहाँ पर again, इस particular patients की दवाई को handle करने से पहले you need to sit down with the patient and talk to the patient about the nature of the disease, what to do, vaccinations, diet, drugs, alcohol, smoking, etc. जैसे हमने पहले बात की है. यहाँ पे important बात यह है कि जब हम पेशेंट के साथ बात करते हैं तो प्रिकॉशंस, ये सारी चीजें तो रहेंगी. फैमिली वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट. हैव वी एडवाइज्ड ऑन दैट एस्पेक्ट कि पेशेंट का जो हस्बैंड है और उसके बच्चे हैं उन्होंने चेक कराया है सरफेस एंटीजन और आया वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं. सो दैट शुड बी टेकन अप. यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस में डेल्टा वायरस नजर नहीं आ रहा. ये हमारी बड़ी कॉमन मिस्टेक है. दुनिया भर में हम पेशेंट को 10 साल तक मैनेज करते रहते हैं और उसका डेल्टा वायरस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड ऑलवेज, anybody who is surface antigen positive should have a delta virus anti-HDV first, and if positive, HDV RNA quantitative should be done. इसकी हीमोग्लोबिन भी थोड़ी कम है. We have to look into that कि why is it so? और प्लेटलेट्स हाई हैं, हो सकता है इसे क्रॉनिक अनीमिया हो. So we need to look into this कि आयरन डिफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी है, B12 डिफिशिएंसी है और क्यों है, और उसको भी स्टूल ऑकल्ट ब्लड चेक करना चाहिए. जहां तक इसके मेडिसिन का ताल्लुक है कि शुड बी कंटिन्यू TDF. अगर आप पिछला फाइब्रो स्कैन देखें व्हेन इट वाज डन प्रोबेबली 2 years ago, वो F2 F3 के बॉर्डर पे था और अल्ट्रासाउंड इज शोइंग कोर्स liver echo texture. So this is probably advanced fibrosis or pre-cirrhotic. Message ये है कि advanced fibrosis and cirrhosis में
आपने कोई अटेम्प्ट नहीं करनी टू स्टॉप द ट्रीटमेंट. और फीमेल्स more than 50 in our region and males more than 40 in our region, we should start HCC screening with alpha fetoprotein and 6 monthly ultrasound. इसीलिए कहते हैं कि upfront आपको फाइब्रोसिस स्कोर जरूर रखना चाहिए. बाद में चाहे जो मर्जी हो, अगर शुरू में F4 था, 5 साल की ट्रीटमेंट के बाद वो F2 हो गया है, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. बेस लाइन जो आपका फाइब्रोसिस स्कोर है, उस पर आपने स्क्रीनिंग लाइफ लॉन्ग और ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग रखनी है. जैसे आपको पता है कि ई एंटीजन नेगेटिव डिजीज में नाउ द गाइडलाइंस सजेस्ट कि अगर पेशेंट 3 इयर्स तक ओरल थेरेपी ले चुका है, तो यू कैन मेक एन अटेम्प्ट provided make an attempt to stop therapy provided patient can comply with close follow up. This close follow up is very worrying. इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन वो नॉन सिरोटिक्स के लिए है. This patient has advanced fibrosis and cirrhosis, so इसके लिए हम कम से कम मैं कंसिडर नहीं करूंगा stopping therapy. I'll continue TDF, I'll do anti-HDV, I'll work up for anemia and try and correct it if I can. And at the age of 50, I'll start screening for HCC. अगर ये पेशेंट आपके पास रेगुलर आ रहा है, तो 50 का आप वेट भी ना करें, क्योंकि ये तो आर्बिट्रेरी है. I sometimes start screening in any patient at any age who has advanced fibrosis and cirrhosis for 6 monthly ultrasound and follow-up. So आप एज का इंतजार ना करें. इस पर्टिकुलर पेशेंट में विद एडवांस्ड फाइब्रोसिस 6 मंथली अल्ट्रासाउंड और अल्फा फीटो करते रहें. और क्या क्वेश्चन था डॉक्टर राज? सो कंटिन्यू विद टेनोफोविर and explain to the patient that it should be lifelong therapy because she has advanced fibrosis. Frequency of follow-up 6 monthly. 6 monthly is sufficient. So every 6 months viral load चाहे आप साल में एक दफा कर लें, LFTs, creatinine, alpha feto, ultrasound, ये जरूर आप every 6 months करते रहें. So this is all from my side. If anybody has any comments, Nadeem, Ali Haider, anyone who wants to make a comment? No, sir, I don't think there's any comments needed. बहुत शुक्रिया. Ali Haider? जी सर, सर कमेंट की तो कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है. जस्ट जो आपने बताया है उन्हीं को दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि ये जो सिनारियो है, ये पेशेंट है, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का नहीं है. ये पेशेंट हेपेटाइटिस बी इंड्यूस्ड अर्ली सिरोसिस कहें तो ये सिरोसिस लिवर का ही पेशेंट है, ड्यू टू हेपेटाइटिस बी. सो इसी में जो फॉलो अप है, डेफिनेटली जो ट्रीटमेंट है उसको तो स्टॉप करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो कंटिन्यू रहेगी जैसे आपने बिल्कुल जैसे आपने कहा. दूसरी के मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा कि हमने इसकी क्या हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड दोबारा चेक करेंगे. मेरे नज़र में ये सिरोटिक लिवर है, तो पेशेंट को इकोनॉमिक बर्डन से बचाने के लिए जैसे वो हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट कंटिन्यू करे, तो उस हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट कंटिन्यू करे और वायरल लोड रिपीट करने की जरूरत नहीं है. बट 2 चीजें करने की जरूरत है, जैसे आपने फरमाया, एक अल्फा फीटोप्रोटीन, दूसरा अल्ट्रासाउंड लिवर, तो डिटेक्ट एनी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हर 6 महीने मिनिमम जो है. और इसमें स्क्रीनिंग में जो आपने एज बताई है एशियन के हिसाब से, वो स्क्रीनिंग में इसमें अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये पेशेंट ऑलरेडी है ही सिरोसिस लिवर का. तो वंस सिरोटिक लिवर इज एस्टेब्लिश्ड, देन वी हैव टू डू इट एवरी 6 मंथ. इन चीजों को मैंने दोबारा रिपीट किया सर. थैंक यू. थैंक यू.
थैंक यू। ये क्वेश्चन है चैट में कि अगर पेशेंट का फाइब्रोसिस नहीं है और वो HDV पॉजिटिव है तो हाउ विल वी प्रोसीड? वेल, मैं क्या करता हूँ, मैं क्वांटिटेटिव HDV RNA का PCR चेक करता हूँ, मैं पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन स्टार्ट करता हूँ जो कि नॉन सिरोटिक हो या कंपनसेटेड सिरोटिक है। डीकंपनसेटेड में मैं स्टार्ट नहीं कर सकता बिकॉज इट इज कंट्राइंडिकेटेड। और मैं वायरल लोड को फॉलो करता हूं एवरी 3 मंथ्स, और अगर वो नीचे आ रहा है और खत्म नहीं हुआ बाय द एंड ऑफ 12 मंथ्स तो आई प्रोलॉन्ग थेरेपी टू 18 to 24 मंथ्स। अगर वो नीचे आ गया है विद इन 3 to 6 मंथ्स और नेगेटिव हो गया देन 12 मंथ्स ट्रीटमेंट इज सफिशिएंट। एक और क्वेश्चन है, नसीर साहब ने पूछा है कि इफ ट्रीटमेंट इज नॉट सपोज टू स्टॉप देन व्हाई रिपीट PCR? मेरे ख्याल में साल में एक दफा PCR चेक करना जरूरी है। मुझे ये दो इंफॉर्मेशन देता है, 1 रीएश्योरेंस के वो नेगेटिव है, और नंबर 2 कि पेशेंट कंप्लायंट है। और मेरे पास क्या तरीका है, पेशेंट तो कहेगा कि मैं दवाई ले रहा हूं, हमारे जैसे पेशेंट होते हैं, और आई नो कि रेजिस्टेंस TDF का नहीं है, लेकिन कंप्लायंस का इशू तो आ सकता है। हो सकता है पेशेंट ने 2 महीने दवाई ना ली हो। सो आई स्टिल थिंक कि आप चाहे 1 साल पे करें चाहे 2 साल पे करें, PCR gives you a lot of information that whether the patient is taking the drugs और नंबर 2 के उसकी कंप्लायंस कैसी है, ये आपको मिल जाएगा। और जैसे बात की मैंने कि एवरी 1 to 2 years PCR चेक करते रहें, चाहे पेशेंट सिरोटिक है या नॉन सिरोटिक है, तो PCR चेक करते रहें एवरी 1 to 2 years। बाकी एक क्वेश्चन था कि PEG interferon in cases of HDV positive PCR, what is the maximum length of treatment? Well, 1 to 2 years is the answer. Generally 1 year, लेकिन अगर वो फॉल कर रहा है और नेगेटिव नहीं हुआ है एट द एंड ऑफ 1 year, you can extend the treatment to 18 to 24 months. PEG interferon with TDF, well, there is no data to suggest कि सिर्फ B डिजीज में ये कोई उसका कोई एडेड एडवांटेज है, लेकिन B और D में particularly सिरोटिक या decompensated सिरोटिक में I tend to start TDF, और अगर compensated सिरोटिक है तो I will start PEG interferon along with TDF. Of course decompensated में आप interferon नहीं दे सकते। So, ये चैट के कुछ क्वेश्चंस थे। अगर किसी ने और कोई क्वेश्चन पूछना है इस केस के बारे में तो प्लीज फील फ्री। जी डॉक्टर इकराम, आपने रेज हैंड किया है। जी, आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा एक्चुअली रिसेंट एनकाउंटर था विद सिमिलर पेशेंट के जिसको सिरोसिस डेवलप हो चुका है एंड हेपेटाइटिस बी की मेडिकेशन पे शी वाज ऑन फॉर द लास्ट 5 years. According to the patient, she was fully compliant. And her HPV DNA level is around 300, 200s and 150s, and it's not coming down. तो सर से मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब इन योर एक्सपीरियंस सर कि यूजुअली द पेशेंट हु ऑलरेडी हैव डेवलप्ड सिरोसिस आर दे मोर रेजिस्टेंट और टू दीज मेडिकेशंस? एंड सेकेंडली, जब हम एक नॉन सिरोटिक में जैसे हम रूल अप्लाई करते हैं लाइक फॉर वी कैन वेट अप टू ईयर, और अगर उसके बाद लेवल डाउन नहीं हो रहा या नेगेटिव नहीं हो रहा तो वी यूजुअली स्विच और वी लाइक ऐड ऑन अनदर थेरेपी, तो वो हम सेम रूल यहाँ भी फॉलो करेंगे? ओके, जहां तक आपका क्वेश्चन है कि एक पेशेंट में ALT नॉर्मल नहीं हो रहा, तो माय सजेशन इज लुक फॉर ऑल्टरनेट कॉजेज ऑफ लिवर डिजीज अगर PCR हेपेटाइटिस बी का नेगेटिव आ रहा है। So you must try and find. No, sir. Sorry, I mean DNA levels is around 300 and 200s. HPV DNA. जी, HPV DNA का तो आपका प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने तो 2000 से कम रखना है। So this is viral suppression, and this is what you want to achieve. So I'm not worried about DNA. I'm worried about ALT. So I would
try and find additional cause of liver disease, any other virus, Delta, for example, any other metabolic or autoimmune liver disease. So don't forget that patients may have 2 or 3 diseases together, NAFLD, obese है patient. So, you know, आपने ये ज़हन में ज़रूर रखना है, and if DNA is suppressed, then you want to look for other causes of liver disease. Right, sir. Thank you, sir. Sir, एक चीज की और थोड़ी सी confusion थी. Usually we receive calls from particularly nephrology department. A patient होते हैं sir, HbSAg is negative, but the core is positive, and they are interested in vaccination of these patients. So इसमें literature में sir, I find something के they said के जी it can be lab error or the part of the world जहाँ पे इसकी ज़्यादा है prevalence, then infection, past infection के chances ज़्यादा हैं, जो एक occult infection चल रहा है. So what we should now, what we should do in our patients? Solitary anti-HBC positive, anti-HBs negative, have B surface antigen negative, I also advise them. I also advise them vaccination. Although there are multiple causes, but I advise them to have vaccinated. और दूसरा patient को या उसके treating physician को ये जरूर बता देता हूँ कि अगर आप कभी इसे immunosuppressive therapy या और कोई steroids high dose long period के लिए दें, तो इसको immunoprophylaxis के तौर पे TDF या एंटीकावेर जरूर शुरू करा दें, because reactivation का चांस होता है. Thank you, sir. सर ये एक और क्वेश्चन था. अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर वायरल सप्रेशन नहीं हो रही, यानी फॉर एग्जांपल अगर 2000 से नीचे वायरल लोड नहीं जा रहा है, तो हम TDF के साथ एंटाकावीर या कोई और एंटीवायरल ऐड कर सकते हैं. और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि क्या हम HCC की स्क्रीनिंग के लिए जस्ट स्क्रीनिंग के लिए हम बायोफिजिक्स सीटी या डायनामिक MRIs पे जा सकते हैं? ओके, HCC स्क्रीनिंग के लिए रिकमेंडेशन तो यही है कि अल्ट्रासाउंड एंड अल्फा फीटोप्रोटीन, बट उसमें एक चीज एडेड है कि अल्ट्रासाउंड बाय एन experienced ultrasonologist. So this is the key कि आप किससे अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, उसकी मशीन कैसी है और उसका एक्सपीरियंस कैसा है. So ये जहन में रखें. अगर आपका अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं बता रहा, अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़ी हुई है, तो you can go for either CT or MRI, whichever is available in your setup, but it has to be dynamic, both. So yes, ये हमारे सेटअप में बड़ी प्रॉब्लम आती है. दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर वायरल लोड नीचे नहीं आ रहा, देखिए प्रॉब्लम ये टिपिकल हमारा है बेसिकली. अगर दवाई अच्छी हो, पेशेंट कंप्लायंट हो, तो वायरल लोड नीचे आता है. हमारे 2 प्रॉब्लम्स हैं. एक तो दवाई अच्छी नहीं है. समटाइम्स इट सो हैपेंस कि आपकी सारी जो आप दवाइयां यूज कर रहे हो, दे आर all so-called made in Pakistan. So आपको ये पता नहीं है कि वो 2 साल पुरानी दवाई जो कि शेल्फ लाइफ पूरी कर रही है, अब उसमें दवाई तो कुछ भी नहीं है, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स रह गए हैं. सो ये एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सर्टेनली बेटर ब्रांड ऑफ ड्रग जिस पर हमारी रिलायबिलिटी हो, क्लोज टू मैन्युफैक्चरिंग डेट, एंड 3 कंप्लायंस. ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने पूरी जिंदगी में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ 2 पेशेंट्स को डीकंपनसेटेड सिरोटिक्स में दवाई ऐड की है, और बाद में 2 साल के बाद मैंने उनको वापस एक दवाई पे कर दिया. मेरा ख्याल है प्रॉब्लम वाज ऑफ द ड्रग इटसेल्फ, नॉट द पेशेंट. उसका वो कंप्लायंट था. और सो ये चीजें, ऑफ कोर्स अगर आपका वायरल लोड नीचे नहीं आ रहा, 2 साल हो गए हैं, तो समथिंग हैज टू बी डन.
change the brand of medicine, add another medicine. अगर patient cirrhotic या decompensated cirrhotic है तो don't stop, add another medicine and think later कि मैंने एक withdraw करनी है या नहीं करनी. So ये मेरी submission है. Thank you. थैंक यू. अब मैं डॉक्टर हिना को इनवाइट करूंगी कि वो अपना केस प्रेजेंट करें. उजैर, आप शेयर करेंगे स्लाइड? जी डॉक्टर हिना, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, we can. We can hear you. Okay. मेरा नाम डॉक्टर हिना है और मैं पेशावर की पीके से बिलोंग करती हूँ. ये केस हमारे पास आया है. He was a 34-year-old male presented married with 3 kids and he was working as a social worker. He presented to emergency with history of fever and blood in vomitus for 2 days. The associated symptoms were weakness, exhaustion, fatigue, shortness of breath, and abdominal distension lasting for around 45 days. His past surgical history consisted of hemorrhoidectomy. The medical history, the drug family history was not significant. Examination showed yellow discoloration of skin and sclera. The abdomen was distended because of ascites, and the investigations were arranged, which were as follows. Uzair bhai, can you add up the investigations, please? We have only these investigations. I didn't download the full, snaps which you sent me. Okay, the thing is that the basic question I wanted to ask in this scenario is that when the workup was done, the bilirubin was 3.2, and the interesting thing was that hepatitis B and hepatitis C was negative. So the thing was that we were thinking about कि ये एक non-alcoholic steatotic किस्म का hepatitis है. अब ये बंदा जो है इनकी क्या treatment plan होना चाहिए है? ये 34 years old हैं, ये ट्रांसप्लांट भी कराना चाहेंगे, ये फाइनेंशियली भी इतने साउंड नहीं है, तो अब इनके लिए हमें क्या नेक्स्ट स्टेप्स पे जाना होगा, कैसे इनको हम गाइड करें? Okay, thank you, Dr. Hena. This is a very typical case that we see often in our tertiary care centers, presenting with hematemesis and found to have decompensated cirrhosis, or superficial investigations per cause is not evident. At least viral serologies are negative. Of course, there are many causes of chronic liver disease which we have not touched upon. Right. Like metabolic. He's young. Can he have Wilson's disease? Can he have, although he's a little bit older for Wilson's disease, but it is possible. Can he have hemochromatosis, although a little early for hemochromatosis? Does he have autoimmune liver disease? Does he have NAFLD and NASH? Or does he have any other idiopathic cirrhosis, etc.? Budd-Chiari syndrome को ना भूलें. हमारे CT के और अल्ट्रासाउंड पे डॉपलर होता ही नहीं है, और CT पर भी लोग मिस करते हैं. So don't forget Budd-Chiari syndrome. जो evidence है, this is overwhelmingly in favor of severely decompensated liver disease with hematemesis. So first step तो वही है जो हम normal करते हैं: resuscitation, endoscopy, stopping the bleeding, tapping the ascites, classifying the ascites as low sag, high sag, ruling out SBP, giving antibiotics, etc., etc. So general principles तो वही हैं. लेकिन इस particular patient में important ये है कि इसका already score अगर आप देखें तो ये 10 पे पहुंच रहा है, चाइल्ड क्लास C पर पहुंच रहा है. MELD भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो भी डेफिनेटली मोर देन 18 होगा. सो ही इज ऑलरेडी देयर जहां पे ट्रांसप्लांट की जरूरत है. सो स्टेबलाइज करें, ट्रांसप्लांट करें और रेफर कर दें.
अगर ये ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता, ही इज नॉट अ कैंडिडेट फॉर एनी अदर रीजन, तो इसका वर्कअप में आपको one has to try and find a cause of liver disease and then address that cause. So that is my humble submission. सिर्फ ये कि बड क्यारी सिंड्रोम को ना भूलें, सीटी पर हेपेटिक वेन्स देखी गई हैं या नहीं देखी या कोई जिक्र ही नहीं है. दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. जी, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें डॉक्टर हिना. सर, इनका जो सीटी स्कैन है उसके अंदर जो है लिवर के बारे में इस तरह से कुछ मेंशन नहीं किया गया था. अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये लोग चाहते हैं कि ये ट्रांसप्लांट करें तो हम इनको कैसे भिजवा सकते हैं? यानी केपीके एक रूरल सा एरिया स्वाबी से ये बिलोंग करते हैं, तो ये कैसे जा सकते हैं लाहौर या कराची? वहां पे किस तरह से किसी को अप्रोच कर सकते हैं कि ये अपना ट्रीटमेंट जो है वो मेंटेन कर लें? और ये बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये लोग इंटरेस्टेड हैं जाने में और लिवर ट्रांसप्लांट करने में, तो वो रास्ता हमें चाहिए था इनके लिए. अगर ये प्राइवेट सेटअप में जा सकते हैं तो आपके पास रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2 सेंटर्स हैं, कायदे आजम इंटरनेशनल हॉस्पिटल और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल. दोनों जगह ट्रांसप्लांट हो रहा है और ट्रांसप्लांट टीम मौजूद है. अगर ये प्राइवेट सेटअप की प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते तो दे कैन कम टू द आउटडोर वंस यू हैव स्टेबलाइज्ड देम, स्टॉप द ब्लीडिंग, कंट्रोल द ascites टू अ लिटिल बिट. आप इन्हें पीकेएलआई, गंबट या कराची भेज सकते हैं. और पेशेंट आते हैं लाहौर में, गंबट में तो पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स जा रहे हैं बिकॉज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. और जैसे आपने सुना है कि डाउ यूनिवर्सिटी में भी फ्री ऑफ चार्ज उन्होंने ट्रांसप्लांट प्रोग्राम लॉन्च किया है. सो यू नो ऑप्शंस हैं, आइदर फ्री और प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसप्लांट की. सो आप ऑप्शंस दे सकती हैं, बाकी पेशेंट की मर्जी है वो कहाँ जाता है और उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है. थैंक यू. Thank you so much. Are there any more questions? क्वेश्चन ये है कि रीनल इम्पेयरमेंट हो तो ट्राइफेजिक सीटी कैसे कराएं? ऑफ कोर्स यू कांट हैव इट, और one needs to make an attempt to improve the kidney function and only then you can go for dynamic CT or MRI. Sure. I think thank you very much, Professor Altaf Alam Sahab. Yet another great session. And we do encourage cases from spokes, और जिस तरह डॉक्टर हिना ने आज प्रेजेंट अपना किया है, तो we do encourage spokes to come up with your cases. और अगर आप थोड़े से hesitant हैं तो आप हमें भी request कर सकते हैं. उज़ैर can always provide you the format, जिस format में हम case present करते हैं. और इसके साथ साथ as usual I am really grateful to Professor Altaf Alam और thankful to Pakistan Society of Hepatology, Ferozens Laboratories, and I would like to thank our chairman, Parsa Trust, Chaudhry Sohail Akhtar, Dr. Asad Ali Chaudhry, our director, Dr. Amna, our facilitator, Uzair, our coordinator, and Haris for IT support. So I would say Allah Hafiz, and Uzair, over to you. You can call off the meeting. Thank you very much, ma'am. Allah Hafiz to all of you. I'm going to call off this meeting.